objectives of the exporting as well as what are the export procedure. So in the objective of the exporting, the first one is to sell surplus goods, to make better utilization of resources, to earn foreign exchange, to increase national income, to generate employment, to increase government revenue, to create international place and cooperation. As well as we have also started a topic, that is export procedure, in which we have already studied the receipt of inquiry and sending quotation. Next we studied the receipt of order or indent, receipt of order or indent. As next is assessing importers credit worthiness and securing guarantee for payment. Next one is obtaining export license, in which we have studied the first is obtaining IEC number, that is import export code. Next is obtaining RCMC, registration cum membership certificate. Okay, so in today's class we are going to start a third obtaining export license is the registration with the ECGC. Okay, so let's start. It is necessary in order to protect overseas payment from the political and commercial risk. This registration also helps the exporter to get financial assistance from the commercial bank and other financial institution. Okay, so it is necessary in the order to protect overseas payment. ठीक है, ये क्यों necessary है कि जो भी overseas जो भी protect जितने भी payment हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम दी पॉलिटिकल एंड दी कमर्शियल रिस्क, जो भी कमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल रिस्क हैं उनसे प्रोटेक्ट करके जो भी पेमेंट हो रहा है उससे क्या करना है, पेमेंट को प्रोटेक्ट करना है. दिस रजिस्ट्रेशन ऑल्सो हेल्प्स टू एक्सपोर्टर टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम कमर्शियल बैंक. ठीक है, ये इस रजिस्ट्रेशन से क्या है कि एक्सपोर्टर को क्या मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इसके थ्रू एक्सपोर्टर को क्या मिलेगी, फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस. प्री शिपमेंट फाइनेंस इज अ फाइनेंस which the exporter needs to procure raw material, other components, processing and the packaging of goods and transportation of goods to the port for shipment. After receiving a letter of credit, the exporter approaches his banker to obtain pre-shipment finance. Okay, so pre-shipment finance is a finance which the exporter needs to procure raw material. ठीक है, इसमें क्या होता है, फाइनेंस है जो एक्सपोर्टर को क्या है, कोई भी रॉ मटेरियल को अवेलेबिलिटी कराना है, अदर कंपोनेंट्स है जो एक्सपोर्टर के थ्रू, एक्सपोर्टिंग के थ्रू प्रोसेसिंग करना कि किस प्रोसेस के थ्रू कोई कमोडिटी प्रोड्यूस होगी, पैकेजिंग ऑफ गुड्स की पैकेजिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स टू द पोर्ट फॉर शिपमेंट. ठीक है, और गुड्स की क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना शिपमेंट तक, कि पोर्ट तक उनको पहुंचाना, जैसे वो कोई भी गुड्स क्या हो शिप्ड हो सके. सो आफ्टर रिसीविंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट द एक्सपोर्टर अप्रोच हिज बैंकर टू ऑब्टेन दी प्री शिपमेंट फाइनेंस. ठीक है, अगर क्या है वो जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव कर लेगा एक्सपोर्टर, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, अपने बैंकर को जहाँ पे उसका अकाउंट होगा वहाँ पे उस बैंकर को अप्रोच करेगा टू ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस. वहाँ से वो प्री शिपमेंट फाइनेंस को ले लेगा. Next is production and procurement of goods. After sending the confirmation to the importer, the exporter start manufacturing the product according to specification. If the exporter is not a manufacturer, then he start procuring the goods from the different manufacturer as per the specification of the export order. Okay, after sending the confirmation to the importer, कि वो कन्फर्मेशन क्या करता है, सेंड करने के बाद इम्पोर्टर को, द एक्सपोर्टर स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट. उसके बाद एक्सपोर्टर क्या है, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन. जैसी भी गुड्स की नीड है, जैसे भी गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, उन गुड्स को क्या है उसके अकॉर्डिंग उस गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देता है. इफ़ द एक्सपोर्टर इज़ नॉट अ मैन्युफैक्चरर, जो भी एक्सपोर्टर है वो मैन्युफैक्चर नहीं है, देन ही स्टार्ट्स प्रोक्योरिंग द गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट
मैन्युफैक्चर। फिर वो क्या करता है, जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है उनसे वो कांटेक्ट करता है कि वो उन गुड्स को क्या करे, वो प्रोड्यूस करे एज़ पर दी स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर। जो भी एक्सपोर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर को क्या करता है, कांटेक्ट करता है, और वो क्या करते हैं, उन कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट जो भी मैन्युफैक्चरर है वो एक्सपोर्टर को वो कमोडिटी प्रोवाइड कर देगा, एंड देन कमोडिटी क्या कर देगा, वो एक्सपोर्टर उसको एक्सपोर्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। Quality plays a very important role in the external trade. Exporter have to follow international quality standard. The goods are produced strictly according to the quality specification of the buyers. In India, it is compulsory to get a pre-shipment quality inspection according to Quality Control and Inspection Act. ओके, तो हमें पता है कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सटर्नल ट्रेड में। अगर आप क्या है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करोगे या इंपोर्ट करोगे, या दूसरी कंट्री अच्छा गुड्स को इंपोर्ट कर रही है, तो उसका क्या है, डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होगा, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पे। उस कंट्री की गुडविल इंक्रीज़ होगी, क्रेडिट वर्दीनेस होगा। अगर हम क्या है, कोई वर्स्ट क्वालिटी का गुड्स को एक्सपोर्ट कर दे, तो कोई कंट्री क्या चाहेगी कि वो इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट कराए, नहीं इंपोर्ट कराए, तो वो क्या कर देगी, मना कर देगी। इसलिए क्या है, क्वालिटी क्या है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो एक्सपोर्टर हैव टू फॉलो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो भी एक्सपोर्टर हैं उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ बायर्स। ठीक है, जो गुड्स हैं वो वैसे ही प्रोड्यूस होंगे जैसे कि जो भी बायर है उसने अपनी क्वालिटी के बारे में बताया। जैसे अगर बायर ने बोल दिया कि हमें क्या है, कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो इस डजेंट मीन कि जो भी एक्सपोर्टर है वो कोई भी गुड्स उठा के उसको एक्सपोर्ट कर देगा। उसको क्या करना पड़ेगा, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को ही उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इन इंडिया इट इज़ कंपल्सरी टू गेट अ प्री शिपमेंट क्वालिटी इंस्पेक्शन। ठीक है, इंडिया में क्या है, ये एकदम कंपल्सरी है कि प्री शिपमेंट मतलब शिपमेंट के पहले ही क्वालिटी का इंस्पेक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। ये एक्ट है क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो भी अगर गुड्स क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होने के पहले ही उन गुड्स की क्वालिटी का इंस्पेक्शन होना ही चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी टू डू। So the government has to prescribe certain quality standard keeping in mind the safety and health of the people. तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो प्रेस्क्राइब कर देती है कि क्वालिटी का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब अगर उसने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कोई स्टैंडर्ड बना दिया कि कोई भी गुड्स अगर प्रोड्यूस होंगे वो इस स्टैंडर्ड के होने चाहिए, तो जो भी एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, उसको वो मेंटेन किए रहेगा। अगर वो उसके नीचे है, क्वालिटी मेंटेन नहीं है, तो वो गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होंगे, क्योंकि उससे क्या है, पूरे इंडिया की क्या होगी, एक गुड बैड नेम होगा ना कि इंडिया से हमने क्या किया, इंपोर्ट कराया और बहुत ही वर्स्ट प्रोडक्ट है। तो अब कोई भी नेक्स्ट टाइम वो कंट्री क्या है, इंडिया से वो गुड्स को इंपोर्ट कराना नहीं चाहेगी। इसलिए क्या है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन किए रहना पड़ता है। ओके, सो गवर्नमेंट हैज़ प्रेस्क्राइब सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड कीपिंग इन द माइंड एंड द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द पीपल, कि ये सोच के कि लोगों की सेफ्टी एज वेल एज इससे हेल्थ लोगों की लिंक्ड है। ओके, सो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल आर सेटअप टू चेक वेदर एक्सपोर्टर आर फॉलोइंग दोज क्वालिटी स्टैंडर्ड और नॉट। ठीक है, जो एक्सपोर्ट के इंस्पेक्शन की काउंसिल बनी है, एक कमेटी बनी होती है, तो वो क्या करती है, वो इसी को चेक करती है कि ये जो क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं वो क्वालिटी में वो प्रोडक्ट हैं कि नहीं है। ओके, सो कीपिंग द माइंड, हाँ, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल आर सेटअप, ये सेटअप होती हैं टू चेक दी वेदर द एक्सपोर्टर आर फॉलोइंग दोज क्वालिटी स्टैंडर्ड और नॉट, कि जो भी डिफरेंट एक्सपोर्टर हैं वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को, क्वालिटी नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इफ़ द काउंसिल इज़ सेटिस्फाइड देन दे इशू एन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। अगर काउंसिल क्या है, जो जिसने क्वालिटी को चेक किया, अगर वो सेटिस्फाइड है कि यस ये एक्सपोर्टर क्या है, वो क्वालिटी के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया है, इन दैट कंडीशन वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट उसको इशू कर देगा।
विदाउट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट इज़ नॉट परमिटेड। जब तक इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक एक्सपोर्ट क्या है वो परमिटेड नहीं होगा। मतलब कोई भी कंट्री गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी एक्सपोर्टर गुड्स को क्या है कि वो शिप्ड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस दे विल नॉट टेक एनी सर्टिफिकेट, inspection certificate. Okay, there are three methods of pre shipment inspection. ठीक है, अब जो भी inspection है प्री शिपमेंट उसका भी 3 methods हैं. Okay, so first one is consignment wise inspection. So in second is in process quality control. Third is self certification. Okay, first one is, in this method the exporter calls the inspector from the export council after goods are ready for dispatch. The inspector check each consignment of finished goods and if he is satisfied then he issues a certificate of inspection. Okay, इस मेथड में क्या होता है कि एक्सपोर्टर क्या करता है, कॉल करता है इंस्पेक्टर को फ्रॉम दी एक्सपोर्ट काउंसिल. मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं क्या हूँ, एक्सपोर्टर हूँ, मेरे को गुड्स कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, जो एक्सपोर्ट काउंसिल है जो इंस्पेक्शन करती है उसके एक इंस्पेक्टर को कॉल करूँगी कि अब गुड्स क्या है, रेडी है, वो डिस्पैच होने वाला है, वो जाने के लिए प्रिपेयर है, आप आके क्या करो, इन गुड्स की क्वालिटी को चेक करो. द इंस्पेक्टर चेक ईच कंसाइनमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, अब जो इंस्पेक्टर आएगा वो हर एक फिनिश्ड गुड्स को पूरा चेक करेगा कि उनकी क्वालिटी सही है कि नहीं. इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड होगा, देन ही इशूज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन. अगर वो सेटिस्फाइड होगा उस कंडीशन में वो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन को इशू करेगा. ओके, नेक्स्ट वन इज़ इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल. अंडर दिस मेथड the inspector inspect the quality during the production process. While goods are in process of manufacturing, then only the inspector comes and inspect the quality. In this method, the inspector can check the quality of raw material used, technology or type of machinery used. If the inspector is satisfied, then an inspection certificate is issued by him. Okay, so इस method में क्या होता है, इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्ट दी क्वालिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, जब गुड्स क्या है, जब प्रोड्यूस होते हैं उसी टाइम वो क्या करता है, इंस्पेक्टर उनकी क्वालिटी को चेक करता है कि वो गुड्स क्या है, प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. वाइल गुड्स आर इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन ओनली द इंस्पेक्टर कम. ठीक है, जब गुड्स क्या है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, मतलब वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसी प्रोसेस में क्या है, उसी प्रोसेस में गुड्स को वो आके चेक करते हैं. एंड द इंस्पेक्टर कम एंड इंस्पेक्ट द क्वालिटी. वो आते हैं इंस्पेक्टर और उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट करते हैं. इन दिस मेथड द इंस्पेक्टर कैन चेक द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. इस मेथड में क्या है, इंस्पेक्टर क्या चेक करता है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, मतलब जो भी इनपुट्स वो लोग लगा रहे हैं वो इनपुट्स किस क्वालिटी का है. ओके, टेक्नोलॉजी, और वो कौन सी किस टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, टाइप ऑफ मशीनरी, किस टाइप की मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं. इफ़ द इंस्पेक्टर इज़ सेटिस्फाइड, जब वो इंस्पेक्टर क्या है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, देन एन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इज़ इशूड बाय हिम. तब क्या होगा कि अगर वो इंस्पेक्टर, ये क्या है, जब गुड्स प्रोड्यूस होंगे तभी वो आके इंस्पेक्टर चेक करेगा उसकी क्वालिटी, रॉ मटेरियल्स की, कैसे टाइप ऑफ मशीनरी कैसी यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ हो रही है, वो सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं या नहीं, कि गुड्स क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं कि नहीं. तो ये सब क्या है, इंस्पेक्टर आके चेक करेगा. इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड देन ही इशू द इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट. वो क्या कर देगा, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा. और जैसे ही इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा तब वो गुड्स क्या हैं, प्रिपेयर हो जाएंगे उसको शिप्ड करने के लिए. फिर वो शिप हो जाएंगे सारे और वो एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ सर्टिफिकेशन. Reputed firms and large-scale exporters themselves see to it that international quality standards are maintained to improve and earn goodwill in the international market. They try to obtain international quality standard marks such as ISO 9000, ISO 2000, etc. These firms acquire mechanism of quality assurance and testing facility. After self-inspection, they
may also approach the Export Inspection Council to inspect the quality standard and issue a certificate. Okay, simple it means self certificate. जो भी reputed firms हैं, जो भी मतलब बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं, रेप्यूटेड फर्म है, वो क्या करती हैं, खुद ही वो सेल्फ सर्टिफाई करती हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाई है. सो रेप्यूटेड फर्म्स एंड लार्ज स्केल एक्सपोर्टर देम सेल्फ सी टू इट, वो खुद ही वो क्या करते हैं, अपने गुड्स को चेक करते हैं डैट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड टू इम्प्रूव एंड अर्न गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट. की जो भी इंटरनेशनल क्वालिटी मेंटेन्ड है कि नहीं, अगर वो मेंटेन है तब वो क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में अपना गुडविल को वो मेंटेन किए रहेंगे. दे ट्राई टू ऑब्टेन इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड मार्क्स सच एज ISO 9000, ISO 2000 एक्सेट्रा. ठीक है, जो भी ये सारे रेप्यूटेड फर्म्स हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या हैं, वो इंटरनेशनल क्वालिटी ये लोग क्या करते हैं कि अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किए रहते हैं और एक उस पर मार्क्स भी बना देते हैं. जैसे आप गुड्स पे देख रहे होगे, कोई भी गुड्स आता है तो उस पर ISO करके दिया रहता है. ये क्या है, ये ISO क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि ये 9000 2000 ये सब उसके एक मार्क्स हैं जो ये शो करता है कि गुड्स क्या हैं, क्वालिटी में काफ़ी अच्छे हैं. ओके, सो दीज फॉर्म्स एक्वायर मैकेनिज़्म ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग फैसिलिटी. ठीक है, ये जो फॉर्म्स हैं वो क्या करती हैं, मैकेनिज़्म एक्वायर करती हैं कि क्वालिटी को एश्योर किया जाए और टेस्टिंग की फैसिलिटी, मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो गए उनको टेस्ट करना पड़ता है कि वो प्रॉपर हैं या नहीं. आफ्टर सेल्फ इंस्पेक्शन, अपना सेल्फ इंस्पेक्ट करने के बाद दे में ऑल्सो अप्रोच दी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल. उसके बाद वो क्या करती हैं, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल को भी अप्रोच करती हैं, कॉन्टैक्ट में आती टू इंस्पेक्ट दी क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड इशू अ सर्टिफिकेट. फिर वो उसके बाद क्या करती हैं कि इंस्पेक्टर को कॉल करती हैं. इंस्पेक्टर क्या आते हैं, वो पूरे क्वालिटी स्टैंडर्ड को इंस्पेक्ट करते हैं कि वो गुड्स क्या हैं, क्वालिटी में बेस्ट हैं कि नहीं, क्वालिटी नॉर्म्स को, क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं. इफ़ द इंस्पेक्टर इज सेटिस्फाइड देन दे विल इशू दी सर्टिफिकेट. ओके, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट फिर वो इशू कर देता है. ओके, नेक्स्ट वन इज एक्साइज क्लियरेंस. Okay, so the exported goods are generally exempted from the excise duty if duty is already paid, then it is refunded back to the exporter. ठीक है, जो भी exported goods हैं वो exempted होते हैं excise duty. excise duty means जो भी goods क्या होते हैं, import और export होते हैं, उन पे tax पे करना पड़ता है. जो भी goods लेके जा रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, tax पे करना पड़ता है. इम्पोर्टेड गुड्स पे जो भी इम्पोर्टर है वो टैक्स पे करेगा. एंड इफ़ दिस ड्यूटी इज़ ऑलरेडी पेड, अगर ये ड्यूटी, ये जो एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी पेड है, देन इट इज़ रिफंडेड बैक टू दी एक्सपोर्टर. फिर वो नेक्स्ट रिफ़ंड हो जाएगी, एक्सपोर्टर को फिर से रिफ़ंड हो जाएगी अगर वो ऑलरेडी पेड है तो. टू गेट एग्जेम्पशन द एक्सपोर्टर अप्लाई टू एक्साइज कमिश्नर. ठीक है, अगर उसको किसी भी एक्सपोर्टर को क्या चाहिए, एग्जेम्पशन चाहिए कि वो उस एक्साइज ड्यूटी पेमेंट ना करना पड़े, तो वो क्या है, एक्साइज कमिश्नर को अप्लाई करेगा, कांटेक्ट करेगा अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ RCMC. ठीक है, किसके साथ, जो हम लोग ने जो एक रजिस्टर्ड पढ़ा था ना, एक्साइज कमिश्नर अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ RCMC की कॉपी के साथ वो क्या करेगा, उनको कांटेक्ट करेगा. इफ़ द एक्सपोर्टर हैज़ ऑलरेडी पेड एक्साइज ड्यूटी देन ही हैज़ get refunded and applies to assistant commissioner of excise. ठीक है, अगर वो क्या है, सारे ही एक्साइज ड्यूटी को पेड कर दिया है तो वो क्या होगा, उसको रिफ़ंड हो जाएगा. एंड देन ही अप्लाइज टू दी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एक्साइज. फिर वो क्या करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर को क्या करेगा, एक्साइज के असिस्टेंट जो कमिश्नर है उनको अप्लाई करेगा. फिर देन असिस्टेंट कमिश्नर वेरीफाइज द रिफ़ंड एप्लीकेशन. फिर वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो वेरीफाई करेगा रिफ़ंड एप्लीकेशन कि इसने ऑलरेडी पेड कर दिया है, उसको चेक करेगा. एंड इफ़ ही इज़ सर्टिफाइड द ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी इज़ अमाउंट इज़ रिफंडेड बैक टू दी एक्सपोर्टर. ठीक है, वो असिस्टेंट कमिश्नर पूरा उसको चेक करेगा, वो देखेगा कि अगर अच्छा ये ऑलरेडी पेड है तो उसको क्या है कि वो जो अमाउंट है उसको फिर वो रिफ़ंड कर देगा. ओके,
Next one is obtaining certificate of origin. So some importing countries provide tariff concession to goods coming from a particular country. To avail of such benefits, the importer may ask the exporter to send a certificate of origin. Thus, this certificate is proof that goods are actually being manufactured in the country from where these are exported. This certificate can be obtained from trade consultant located in the exporter country. Okay, so obtaining certificate of origin. Some importing country provide tariff concession to the goods coming from a particular country. कुछ importing country ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, टैरिफ मीन्स टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड गुड्स पे पे होता है. तो कुछ इम्पोर्टिंग कंट्री ऐसी हैं जो टैरिफ में कंसेशन प्रोवाइड करती है, जो भी टैक्स पे करना पड़ता है उन पे टैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं गुड्स कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री. सब पर नहीं, किसी पर्टिकुलर कंट्री पे ही, मतलब जिसके साथ उनका गुडविल अच्छा होगा, अच्छे रिलेशन होंगे, उन पे वो क्या करती है, टैरिफ का कंसेशन देती है. टू अवेल ऑफ सच बेनिफिट द इम्पोर्टर में आस्क द एक्सपोर्टर टू सेंड अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन. अब ये सारे बेनिफिट्स को लेने के लिए इम्पोर्टर जो भी कंट्री है या इम्पोर्टिंग कंट्री है या जो इम्पोर्टर है जो गुड्स को इम्पोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्टर से बोलेगा कि आप मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन को सेंड करो. दिस सर्टिफिकेट इज़ प्रूव डैट, ये सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि गुड्स आर एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन द कंट्री फ्रॉम वेयर दे आर दीज आर एक्सपोर्टेड. उस सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन में यही मेंशन्ड होगा कि जो गुड्स हैं वो एक्चुअली कहाँ हैं, मतलब जिस भी कंट्री में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, जहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वहीं पे ही वो क्या हुए हैं, मैन्युफैक्चर हुए हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन हम अमेरिका से करते हैं, तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन यही होगा कि ये जो गुड्स हैं वो इंडिया में ही बने हैं और यहीं से ही वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं. दिस सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेड कंसल्टेंट लोकेटेड इन द एक्सपोर्टर कंट्री. ये सर्टिफिकेट कैसे, जो ट्रेड के कंसल्टेंट होते हैं एक्सपोर्टर्स की कंट्री में, उनके पास से ही हम लोग ये जो सर्टिफिकेट है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रिजर्वेशन ऑफ द शिपिंग स्पेस. द एक्सपोर्टिंग फर्म्स अप्लाई टू अ शिपिंग कंपनी फॉर अ बुकिंग अ शिपिंग space. On accepting this application, the shipping company issues a shipping order. A shipping order is an instruction to the captain of the ship to receive the specified goods on a board after custom clearance. Okay, इसमें क्या होगा कि जो भी एक्सपोर्टिंग फर्म्स है, जो ऐसी फर्म है जो गुड्स को एक्सपोर्ट करी है, द एक्सपोर्टिंग फर्म अप्लाई टू अ शिपिंग कंपनी. शिपिंग कंपनी को वो अप्लाई करेगी फॉर बुकिंग अ शिपिंग स्पेस, कि वो उसको गुड्स को क्या करना है, शिप करना है, एक्सपोर्ट करना है. तो शिप पे क्या करे, वो एक स्पेस को, मतलब जहाँ पे उसके गुड्स क्या हैं जाएंगे, रखे जाएंगे, उस गुड्स पे वो क्या कर दे, उसको रिजर्व कर दे. ऑन एक्सेप्टिंग दिस एप्लीकेशन द शिपिंग कंपनी इशूज़ अ शिपिंग ऑर्डर. अब ये एप्लीकेशन अगर शिपिंग कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, देन द कंपनी इशू दी शिपिंग ऑर्डर. कंपनी फिर शिपिंग ऑर्डर को इशू करती है. अ शिपिंग ऑर्डर इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द कैप्टन ऑफ द शिप. ये एक जो शिपिंग ऑर्डर है वो एक इंस्ट्रक्शन होता है टू द कैप्टन ऑफ द शिप, जो शिप का कैप्टन है, टू रिसीव द स्पेसिफाइड गुड्स ऑन बोर्ड आफ्टर कस्टम क्लियरेंस. की सारे जो भी क्लियरेंस के बाद, जो भी डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के बाद वो क्या करेगा, उस गुड्स को उस बोर्ड्स पे रिसीव कर लेगा. ओके, तो उसके लिए भी क्या है, शिपिंग ऑर्डर को एक्सेप्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज़ पैकेजिंग एंड द फॉरवर्डिंग. द गुड्स आर देन प्रॉपरली पैक्ड एंड मार्क्ड विद द नेसेसरी डिटेल्स सच एज नेम, एड्रेस ऑफ द इम्पोर्टर, ग्रॉस एंड नेट वेट, पोर्ट ऑफ द शिपमेंट and destination, etc. On loading goods into the railway wagon, the railway authority issue a railway receipt which serves as a title of goods. The exporter endorses the receipt in favor of agent to enable him to make the delivery of the goods. Okay, तो इसमें क्या होता है, the goods are then properly, जब ये सारा हो जाता है शिपिंग ऑर्डर से ले लिया जाता है शिपिंग ऑर्डर,
उसके बाद गुड्स को क्या है प्रॉपरली पैक कर दिया जाता है विद दी नेसेसरी डिटेल, उसमें सारे जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं उसको भी उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि नेम क्या है, एड्रेस क्या है इम्पोर्टर का, कहाँ से वो कर रहा है, मतलब कहाँ पे ये गुड्स को जाना है, उसका ग्रॉस और नेट वेट कितना है, शिपमेंट का पोर्ट का शिपमेंट कहाँ है कि कहाँ से गुड्स को जाना है, उसका डेस्टिनेशन कहाँ है कि कहाँ पे उसको पहुँचना है। ऑन लोडिंग गुड्स द इनटू द रेलवे वैगन की, रेलवे की वैगन पे मतलब रेलवे की व्हीकल पे, तो द रेलवे अथॉरिटी इशू द रेलवे रिसिप्ट। ठीक है, आपको हम लोग को पता है कि वो जो सारी जो भी गुड्स वाली जो वो होती है ट्रेन, उससे ये जो गुड्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सपोर्ट दूसरे में जाते हैं, दूसरे एरिया में, दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे क्या है कि रेलवे अथॉरिटी क्या इशू करती है, रेलवे रिसिप्ट विच सर्व एज अ टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, वही क्या है टाइटल ऑफ गुड्स है। द एक्सपोर्टर इंडोसेस द रिसिप्ट इन फेवर ऑफ एजेंट, जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, एक रिसिप्ट को इशू करता है इन द फेवर ऑफ एजेंट टू इनेबल हिम टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, एजेंट के फेवर में कि उसको इनेबल करने के लिए कि टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, की वो उन गुड्स को क्या करे, डिलीवरी करा दे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। The exporter then gets the goods insured with the insurance company to protect against the risk of loss or damage of goods due to sea perils। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक्सपोर्टर then gets the goods insured, फिर एक्सपोर्टर क्या करता है, उन गुड्स को इंश्योर कराता है विद द इंश्योरेंस कंपनी से टू प्रोटेक्ट दी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस, की उस गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि जो भी रिस्क है लॉस का, डैमेज होने का गुड्स का ड्यू टू सी पेरिल, सी में कोई भी अगर कोई कॉजेज़ आ जाती है, वो सिंक कर जाती है या कुछ स्टॉर्म आ गया, उसकी वजह से अगर कोई कॉज होता है, लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इन दैट केस एक्सपोर्टर क्या करता है, गुड्स को इंश्योरेंस करा लेता है। ओके, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस दी 12 स्टेप। सो फर्स्ट वन इज व्हाट वी डिस्कस, that is we have discussed the receipt of the inquiry and the sending quotation। okay, in this क्या होता, in this the prospective buyer है जो प्रोडक्ट का, वो क्या करता है, एक्सपोर्टर सेंड क्या करता है, एक इंक्वायरी सेंड करता है एक्सपोर्टर को रिगार्डिंग देयर प्राइस, क्वालिटी और जो भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू करता है। द एक्सपोर्टर सेंडर रिप्लाई सेंड करता है टू दिस इंक्वायरी की इस कोटेशन के फॉर्म में कि वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस, उस प्रोफॉर्मा इनवॉइस में क्या होता है, सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी क्या है, साइज़ क्या है, शेप क्या है प्रोडक्ट का, विच द एक्सपोर्टर कैन सप्लाई। नेक्स्ट वन इज़ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि प्रोस्पेक्टिव बायर इज़ सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन गिविंग इन द, मतलब कि इसमें क्या है, कोई भी बायर क्या है, जो भी लेना है वो सेटिस्फाइड है कि जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है प्रोफॉर्मा इनवॉइस में, देन ही प्लेसेस द ऑर्डर, वो एक गुड्स ऑर्डर को प्लेस करता है और फिर गुड्स क्या है डिस्पैच हो जाते हैं। दिस ऑर्डर इज़ नोन एज इंडेंट, इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ असेसिंग द इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट। ओके, जब गुड्स क्या है रिसीव्ड हो जाते हैं बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर, जब ऑर्डर उसको मिल गया प्रोफॉर्मा इनवॉइस के थ्रू और गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से पहले जो एक्सपोर्टर है वो क्या इंक्वायरी करता है कि इम्पोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, कि वो पेमेंट प्रॉपरली करेगा कि नहीं करेगा ऑन टाइम। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। ओके, कोई भी गुड्स है ऑब्टेन मतलब एक्सपोर्ट करने से पहले लाइसेंस लेना एकदम मैंडेटरी होता है। सो फर्स्ट वन इज़ obtaining IEC number, that means obtaining import export code. Next one is obtaining RCMC, that is registration cum membership certificate. Next is obtaining pre-shipment finance. Next is production and procurement of funds, pre-shipment inspection, in which there are three methods of the pre-shipment. First one is consignment inspection, in process quality control, third is self certification, next is excise clearance, obtaining certificate of origin, reservation of
shipping space, packaging and forwarding, and insurance of goods. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.